Good morning, students. In previous lecture, we see the group which is the data transfer group, or we complete the first group which is the data transfer group. Now we move towards the next group which is the arithmetic operation group. Means what? In this group, the arithmetic operations are included. Means what? Addition, subtraction, increment or decrement. Like these operations are included in your arithmetic group. So now we move towards the at very first instruction which is the add r. So here the first instruction is what? Add r. So add r, add means what? Addition of registers. ठीक है ना. Here the inbuilt means what? The destination is what? A, and the source is your register. ठीक है ना. तो here in a register means what? Source, we can use the general purpose register. So what are the general purpose register? B, C, D, E. These are the general purpose register. Or the destination is what? It is the fix, which is the accumulator, or it is the main register. Now here I wrote the one note. In arithmetic instruction, in a destination is A means what? Accumulator register is a fix. ठीक है ना. Now the destination and source, here the source is what? R means what? Registers. ठीक है. And the destination is what? Accumulator. So the addition between is done into accumulator and the register. ठीक है ना. So this is your instruction. ठीक है. Now there are three main component which are the register, memory and the data. So first we see the register. Means what? We perform the addition of the accumulator with first operand which is the register. So whatever your addition is performed between the two point or the two operand, in that one operand is a fixed which is the accumulator and the second one is your register. So your first is fixed which is the accumulator, and second will be changed by that according to that instruction. There were already there are three operand: register, memory and the data. Now we add this with the first one operand which is the register. So the format of this instruction is what? All of you see here. First is format means what? Whatever your addition is happened between accumulator contents and the register contents, when your addition is performed, then that result is automatically stored into your destination. So यहाँ पे destination कौन है? Accumulator. So जो आपका arithmetic ऑपरेशन का जो भी रिजल्ट है वो कहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टोर होने वाला है? एक्यूमुलेटर. व्हाई? बिकॉज द एक्यूमुलेटर इज द डेस्टिनेशन. नाउ सी नेक्स्ट वन, द एड्रेसिंग मोड. यहाँ पे क्या है? एक्यूमुलेटर इज ऑल्सो रजिस्टर एंड द रजिस्टर इज ऑल्सो मीन्स हियर in this instruction we use the register. So that's why the addressing mode is what? Register addressing mode. Now the group is what? We start the arithmetic operations. So the group of this instruction is what? Arithmetic group. Second point is what? Byte means what? How many byte contains this instruction? So यहाँ पे कैसे है? This instruction contains only इंस्ट्रक्शन और ओनली अपकोड. मीन्स व्हाट? ऑपरेंड प्लस ऑपरेशन. ऑपरेशन क्या है यहाँ पे? एडिशन. और ऑपरेंड कौन से हैं? एक्यूमुलेटर एंड द रजिस्टर. सो ये कितने बाइट का आया? 1 बाइट का. अभी देखो, इन डेटा ट्रांसफर ग्रुप में ऑलवेज मतलब हर इंस्ट्रक्शन को कहती थी कि फ्लैग इज नॉट अफेक्टेड. वाई? बिकॉज वेन एवर योर फ्लैग इज सेट एट दैट टाइम ALU में आपके अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म जब होते हैं तभी फ्लैग क्या होता है? अफेक्ट होता है. इन फर्स्ट चैप्टर वी ऑलरेडी सी द ALU कंटेंट्स 3 पार्ट: status flag means status register means what? Flag, accumulator and the shifter and adder. जब भी आपका ऑपरेशन परफॉर्म होता है तभी रिजल्ट चेंज होके कहाँ पे जाता है? फ्लैग में, अकॉर्डिंग टू द योर एक्यूमुलेटर रिजल्ट. सेम वे, इसलिए यहाँ पे फ्लैग क्या होता है? अफेक्ट होता है. और ऑल फ्लैग यहाँ पे लिखना पड़ता है. वाई? बिकॉज फ्लैग आपके कौन से भी सेट और रिसेट हो सकते हैं. इसलिए यहाँ पे सब जो फ्लैग है, मतलब फ्लैग ही जो है आपका 8 बिट का, वो यहाँ पे जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है इस पे क्या होता है? अफेक्ट होता है. ठीक है ना. नाउ वी सी द ब्रीफली एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन इन द कॉमेंट.
the comment is what? The content of resistor R is added with the content of your accumulator, or whatever your result is come from this operation that will be stored into your accumulator. ठीक है ना. So ये sentence बहुत important है. Whatever your result is come from that operation or that instruction that store into your accumulator. Now we see the example. यहाँ पे example दिया है. Let D equals to 34H and accumulator equals to 05H. So हम देखते हैं कैसे ऑपरेशन होता है इसका. तो इंस्ट्रक्शन कैसे आ जाएगी इसकी. देखो यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज़ किया है उन्होंने. क्या यूज़ किया है. डी रजिस्टर. ठीक है ना. तो डी रजिस्टर यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कैसे आ जाएगी आपकी. ऐड डी. यहाँ पे एक्यूमुलेटर कहाँ पे इनबिल्ड है. कहाँ पे इनबिल्ड है ऑलरेडी. इंस्ट्रक्शन में. ऐड इंस्ट्रक्शन में कौन सा एक्यूमुलेटर. वन. डेस्टिनेशन विच इज़ द एक्यूमुलेटर वो ऑलरेडी इनबिल्ड है. तो सेकेंड वन कौन सा होगा पार्ट. ए प्लस डी. मतलब एक्यूमुलेटर के कंटेंट ऐड विथ यूअर डी रजिस्टर डेटा. ठीक है. नाउ सी the accumulator data is 05 or D is a 34H. Now whatever your this hexadecimal number or the decimal number, firstly convert it into your binary number. So first we write here zeros binary number. जीरो का बाइनरी नंबर लिखना है. आफ्टर दैट यहाँ पे किसका लिखना है. 5 का. और नीचे जो है वो किसका है अगेन 3 का. और यहाँ पे किसका है 4 का बाइनरी नंबर. तो जीरो क्या क्या है 0 0 0 0. 5 का क्या है 0 1 0 1 0 1. देन 3 का क्या है 0 0 0 1 1. और 4 का है 0 1 0 0. ठीक है ना. नाउ वी स्टार्ट द एडिशन टू द LSB पॉइंट. हम कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं एडिशन की. LSB से. यू ऑलरेडी नो द रूल्स ऑफ एडिशन. 0 + 0 0. 0 + 1 1. 1 + 0 1. 1 + 1. Answer is 0. Carry is 1. So these are the rules of your addition. Now we apply these rules in this addition format. ठीक है. Now see here we start the addition from the LSB bit which is the 1 and 0. 1 + 0 1. 0 + 0 0. 1 + 1 0. Carry 1. So यहाँ पे क्या आ गई carry 1. Again 1 + 0 0. Sorry 1 + 0 is 1. Again 1 + 0 is 1. ठीक है ना. Next 0 + 1 1. 0 + 1 1. 0 + 0 0. 0 + 0 0. So your answer is like this. 0 0 1 1 means what 3. 1 1 0 sorry 1 0 0 1 means what 9. So आपका आंसर क्या आ गया आफ्टर एडिशन. इनकी एडिशन होने के बाद आपका आंसर क्या आया 39H. सो दिस रिजल्ट इज स्टोर इनटू योर एक्यूमुलेटर विच इज A = 39H. ठीक है ना. ये आपका क्या हो गया रिजल्ट एक्चुअली. अभी इसके बाद हमें क्या निकालना है फ्लैग निकालना है. क्या निकालना है फ्लैग. तो कैसे फ्लैग निकालते हैं वो देखो. ठीक है ना. द फ्लैग अभी सॉरी देखो यहाँ पे फ्लैग जो है वो कितने बिट का रहता है 8 बिट का रहता है. ठीक है ना. तो मैंने ऑलवेज आपको पढ़ाया था फ्लैग में भी बताया था. फ्लैग में एग्जाम्पल भी हमने देखे थे. द बिट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम LSB टू MSB और दैट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 7 बिट. अभी यहाँ पे कौन सा रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हुआ है एक्यूमुलेटर. सो दैट्स वाई आई राइट हियर A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7. ठीक है ना. ये रिजल्ट स्टोर किया मैंने एक्यूमुलेटर में. फ्लैग का एक ड्रॉ किया बॉक्स और इसके नीचे मैंने लिखा कैरी डोंट केयर, पैरिटी डोंट केयर, ऑक्सिलरी डोंट केयर, जीरो देन साइन फ्लैग. सो दीज आर द फ्लैग. ऐसे नीचे लिख के लेना है. ठीक है ना. अभी जो अंदर के कंटेंट है वो कैसे फिलअप करना है और किसके बेसिस पे करना है वो हम देखते हैं. नाउ सी हियर कैसे होता है. देखो क्या आया इसके बेसिस पे हमें रिजल्ट यहाँ पे लिखना है. यहाँ पे कैरी प्रेजेंट आई. यहाँ पे कैरी है क्या 0 आई मीन्स व्हाट कैरी फ्लैग इज 0 आया लिखा मैंने. उसके बाद देखो उसके बाद यहाँ पे सेकेंड फ्लैग कौन सा है पैरिटी. तो पैरिटी कैसे काउंट करते हैं काउंट द नंबर ऑफ वंस. ठीक है ना. तो कितने हैं 1 2 3 4. कितना आया 4 मतलब क्या आया इवन. सो इवन आया मतलब क्या लिखते हैं हम 1 पैरिटी मीन्स व्हाट पैरिटी इज सेट. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा
यहाँ पे मुझे पैरिटी को क्या लिखना है फिर 1, कैरी को मैंने क्या लिखा 0, ठीक है। अभी नेक्स्ट फ्लैग कौन सा है, ऑक्सिलरी फ्लैग। तो ऑक्सिलरी फ्लैग कैसे सेट करते हैं हम, देखो ये क्या है 0th बिट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। वेनेवर आपका जो थर्ड बिट है, ठीक है ना, थर्ड बिट टू फोर्थ बिट डेटा सपोज कैरी जनरेट हुई तभी हमें क्या लिखना है 1, अदरवाइज 0। यहाँ पे कैरी जनरेट हुई क्या, नहीं, सो दैट्स वाई वी राइट हियर 0। तो देखो आपका कैरी आ गया 0, पैरिटी आ गई 1, ऑक्सिलरी आ गया 0। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट विच इज़ द 0 हम कब लिखते हैं, जब ये होल आंसर 0 आता है तभी हम क्या करते हैं यहाँ पे 1 लिखते हैं, अदरवाइज 0 लिखते हैं। तो मेरा 0 फ्लैग क्या आ गया 0, बिकॉज द आंसर इज नॉट 0। मतलब वो जो 39H है, इंस्टेड ऑफ दैट 39H 0 यहाँ पे आया है क्या, नहीं, वो वहाँ पे क्या आया है 39H, सो दैट्स वाई 0 फ्लैग इज 0। अभी देखो नेक्स्ट वन जो रहता है वो है साइन फ्लैग। तो साइन फ्लैग में जो हमारा MSB बिट है वो हम यहाँ पे एज इट इज़ लिखते हैं। तो आपका ये क्या हो गया फ्लैग, ये क्या हो गया फ्लैग। तो मैंने इससे फ्लैग निकाला, इससे क्या निकाला फ्लैग, ना कि इस आंसर से, ठीक है ना। आपको यहाँ पे जो लिखते हैं, यहाँ पे जो रहता है उससे हमें क्या लिखना पड़ता है फ्लैग। तो ऐसे है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो वो कौन सी है आपकी ऐड, वो कौन सी है आपकी एडिशन विद द रजिस्टर। अभी देखो मैंने रजिस्टर के साथ एडिशन की, अभी नेक्स्ट कौन सा है मेरा मेमोरी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो आपकी कौन से है विद द मेमोरी। नाउ सी हियर द सेकेंड वन इंस्ट्रक्शन विच इज द एडिशन ऑफ एक्यूमुलेटर विथ योर मेमोरी कंटेंट्स। तो दिस इज योर सेकेंड इंस्ट्रक्शन। उसको कैसे लिखते हैं, एड M। So देखो here M means what, HL register pair which is indirectly located to your memory location, ठीक है ना। अभी देखो एडिशन में इनबिल्ट कौन सा है रजिस्टर, एक्यूमुलेटर। सो जो आपकी एडिशन होने वाली है वो किन के बीच में होने वाली है, एक्यूमुलेटर और द HL रजिस्टर के पेयर में। नाउ वी सी हियर 1 by 1। तो फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट मैंने वही लिखा है A plus M। So M means what, here the M contains the HL register pair, ठीक है ना। जो इनका रिजल्ट है वो कहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टोर होगा, डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन यहाँ पे कौन है, एक्यूमुलेटर, ठीक है ना। सो जो आपका रिजल्ट है वो कहाँ पे स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में होगा, ठीक है ना। अभी देखो नेक्स्ट वन है आपका एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली आप कहाँ पे एक्सेस कर रहे हो, मेमोरी को थ्रू द HL रजिस्टर पेयर। सो ये क्या होगा इनडायरेक्टली, और ये सब क्या है रजिस्टर। सो इसका एड्रेसिंग मोड क्या आ जाएगा, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है ना। उसके बाद ग्रुप कौन सा चल रहा है हमारा, अरिथमेटिक ग्रुप चल रहा है। नेक्स्ट वन बाइट, ये टोटल यहाँ पे कुछ 8 बिट या तो 16 बिट का डेटा है क्या अवेलेबल, नहीं, इसलिए इसका कितना बाइट आ जाएगा 1 बाइट। अभी देखो यहाँ पे फ्लैग क्या है, ऑल सेट हो जाने वाले हैं, बिकॉज अरिथमेटिक ऑपरेशन हम यहाँ पे क्या करने वाले, परफॉर्म करने वाले, विच इज़ द एडिशन, ठीक है ना। सो जो भी कुछ है वो अफेक्ट कर जाएगा। नेक्स्ट वन कमेंट में देखो, मीन्स ब्रीफली एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, द कंटेंट ऑफ योर एक्यूमुलेटर the content of your accumulator is added with your memory, the content of your memory where the address is stored into your HL register pair, or the result of this instruction is automatically stored into your accumulator, ठीक है ना। सो ये है आपका एक्सप्लेनेशन। नाउ वी सी द एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे लिखा है लेट HL इक्वल्स टू एड्रेस दिया है D000H, और उस लोकेशन को एक पर्टिकुलर एड्रेस दिया है विच इज़ 51H। कौन सा दिया है 51H, और एक्यूमुलेटर को कौन सा डेटा है 45H। नाउ वी सी द एग्जैक्ट एडिशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन कैसी होगी इसकी, देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है एड M, ठीक है ना। अभी यहाँ पे मैं HL लिख सकती हूँ क्या, नहीं, बिकॉज इनडायरेक्टली कहाँ पे एक्सेस किया है मेमोरी को, HL को एक्सेस किया है, ठीक है ना। अभी देखो एक्यूमुलेटर कंटेंट्स द 45H वैल्यू एंड द HL मीन्स व्हाट, दैट D000H, दिस एड्रेस कंटेंट्स विच वैल्यू 51H वैल्यू। सो द एडिशन इज हैपन बिटवीन द 45H एंड द 51H। नाउ
we write the binary number of 45H and the 51H. First we write the binary number of 4, then 5, then 5 and then 1. So I write here the binary number of 4. देन यहाँ पे मैंने किसका लिखा है 5 का 0110101. उसके बाद यहाँ पे मैंने 5 का लिखा है 0101. उसके बाद किसके लिखा है 1 का लिखा है 0011. ठीक है ना. नाउ वी परफॉर्म द एडिशन फ्रॉम द LSB साइड. 1 + 1 is what 0, carry 1. Again 1 0 0 means what 1. नेक्स्ट 1 + 0 1, 0 + 0 0. ठीक है. अभी नेक्स्ट 0 + 1 1, 0 + 0 0, 1 + 1. आंसर इज 0, कैरी इज 1. 1 0 0 मीन्स वॉट 1. कैरी आ गई यहाँ पे नहीं, तो वो क्या लिखा मैंने 0. ठीक है ना. तो इसका आंसर क्या है 9. और ये 0110 मीन्स वॉट 6. तो आपका आंसर क्या आ गया 96H. दिस आंसर स्टोर इनटू योर एक्यूमुलेटर. कहाँ पे स्टोर हो जाएगा आपका आंसर एक्यूमुलेटर में. ठीक है. सो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक्यूमुलेटर इक्वल्स टू 96H. अभी मुझे क्या निकालना है फ्लैग. क्या निकालना है मुझे फ्लैग. तो फ्लैग के मैंने यहाँ पे लिख के लिए A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7. ठीक है ना. तो अभी इस आंसर के बेसिस पे मुझे क्या लिखना है फ्लैग लिखना है. तो कैसे लिखते हैं देखो. यहाँ पे कैरी प्रेजेंट आई क्या नहीं, तो यहाँ के मैंने क्या लिखा 0. यहाँ पे कैरी क्या है एब्सेंट है, इसलिए 0 लिखा. नेक्स्ट है पैरिटी. नंबर ऑफ वंस क्या करो आप काउंट करो. कितने आ गए यहाँ पे 1 2 3. कितने आ गए 3. तो ये क्या हो गया 4 है शायद. 1-2 मिनट. हाँ देखो कितने हैं 1 2 3 4. कितने हैं नंबर ऑफ काउंट्स 4 है. तो यहाँ पे क्या इवन क्या आ गई पैरिटी इज इवन. सो यहाँ पे पैरिटी लेके क्या हो गए सेट. पैरिटी इज सेट, कैरी इज एब्सेंट, सो दैट्स वाई it will be it is the reset. now we move towards the auxiliary. यहाँ से यहाँ पर कुछ कैरी जनरेट हुई क्या D3 to D4 बिट पे नहीं, तो इसलिए ऑक्सिलरी फ्लैग क्या आ गया 0. नाउ ये जो आंसर है वो 0 0 है क्या 00H नहीं, तो इसलिए 0 फ्लैग क्या आ गया 0. और ये जो बिट है वो क्या था LSB बिट 1. सो साइन फ्लैग क्या हो गया आपका 1. सो दिस इज आप ये जो क्या है आपका फ्लैग सेट हो गया. देखो इसमें आपको मैंने आंसर दिखाया, इस पे देखो ये है आपका फ्लैग इस तरह से सेट हो जाएगा. ठीक है ना. सो ये है आपकी सेकंड वन इंस्ट्रक्शन. अभी देखो हमने सबसे पहले कहाँ पे देखा, कौन सी देखी रजिस्टर के साथ एडिशन देखी. उसके बाद किसके साथ देखी मेमोरी. नाउ हम किसके साथ एडिशन करने वाले हैं अभी इमीडिएट डेटा. किसके साथ इमीडिएट डेटा के साथ. अभी देखो यहाँ पे इमीडिएट डेटा आया, मतलब क्या आया आया. ठीक है ना. सो जब भी आई आता है तो हम कैसे लिखते थे मूव के लिए MVI. सेम वे अभी यहाँ पे क्या लिखना है ADI. सो दिस I स्टैंड्स फॉर द इमीडिएट 8-bit डेटा. दिस I स्टैंड्स फॉर द 8-bit इमीडिएट डेटा. ठीक है ना. अभी देखो इंस्ट्रक्शन कैसी होगी आपकी ADI डेटा. अभी ADI मतलब क्या एडिशन इमीडिएट डेटा. सो फुल फॉर्म क्या है इसका देखो एडिशन ऑफ एक्यूमुलेटर विथ इमीडिएट डेटा. सो फॉर्मेट कैसे आ जाएगा 8-bit जो डेटा है वो किसके साथ ऐड होने वाला है एक्यूमुलेटर्स के साथ, और उसका जो रिजल्ट है वो कहाँ पे स्टोर होगा आपके ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेटर में. ठीक है ना. सो एक्यूमुलेटर प्लस 8-bit डेटा इनकी आपकी एडिशन होने वाली है, और उसका जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे स्टोर होगा आपका एक्यूमुलेटर रिजल्ट में. नाउ एड्रेसिंग मोड यहाँ पे क्या आ जाएगा बिकॉज इमीडिएट. वाई बिकॉज द जो भी डेटा है वो क्या है इमीडिएट 8-bit डेटा है. सो दैट्स वाई एड्रेसिंग मोड के यहाँ पे क्या आ गया 8-bit इमीडिएट डेटा. ग्रुप कौन सा है अरिथमेटिक. अभी देखो यहाँ पे डेटा है कितने बिट का है 8-bit का है, इसलिए ये कितने हो गया 2 बाइट का हो गया. 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन और 1 बाइट मतलब 8-bit का डेटा, ऐसे टोटल कितने हो गए 2 बाइट का ये जो है इंस्ट्रक्शन हो गए उसके साइज. नाउ नेक्स्ट फ्लैग यहाँ पे क्या होगा अफेक्टेड होगा. अभी कमेंट में देखो सिंपल है एडिशन इन दिस इंस्ट्रक्शन 8-bit इमीडिएट डेटा इज एडेड विथ योर एक्यूमुलेटर कंटेंट. नाउ वी सी द एग्जाम्पल. देखो यहाँ पे मैंने लिखा है लेट A इक्वल्स टू EAH. अभी इंस्ट्रक्शन लिए डायरेक्टली मुझे लिखना है. यहाँ पे डेटा है इमीडिएटली तो वो इंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी गिवन होगा. तो इंस्ट्रक्शन कैसी है देखो यहाँ पे ADI 15H.
तो मुझे बताओ यहाँ पे एक्यूमुलेटर में क्या है स्टोर, EAH। सो मुझे EH के साथ क्या ऐड करना है, ये इमीडिएट डेटा, वो कौन सा है 15H। सो इन दोनों की मुझे क्या करनी है एडिशन, ठीक है ना। नाउ वी सी इन नेक्स्ट पेज हाउ टू परफॉर्म द एडिशन। अभी देखो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे पहले क्या लिखा है मैंने, एक्यूमुलेटर, द एक्यूमुलेटर कंटेंट्स विच वैल्यू EAH, वो मैंने लिखा है। सेकेंड वन डायरेक्टली क्या लिखा है उन्होंने, ADI 15, तो मैंने 15H भी लिखा है। सो यहाँ पे मैंने बाइनरी नंबर लिखा EA का और यहाँ पे मैंने लिखा 15 का। देखो E का क्या है, E मतलब 14, तो 14 का बाइनरी नंबर लिखा 1110 और A मतलब क्या 10 का बाइनरी नंबर लिखा 1010। देन उसके बाद 1 का लिखा 001 और 5 का 0101। नाउ वी स्टार्ट द एडिशन फ्रॉम द LSB बिट। 0 + 1 इज व्हाट 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1। कैरी आ गई क्या यहाँ पे, नहीं, वो क्या है 0। सो ये क्या है 4 टाइम FF मतलब 15, ये क्या है 15, 15 स्टैंड्स फॉर FF। तो आपका आंसर क्या आ गया FFH। सो एक्यूमुलेटर में कौन सा रिजल्ट स्टोर होगा आपका FFH। सो यहाँ पे मैंने दिया है, देखो द एक्यूमुलेटर कंटेंट्स FFH। नाउ फ्रॉम दिस वी सेट द फ्लैग। तो हाउ कैसे फ्लैग सेट होता है वो हम देखते हैं। यहाँ पे कैरी प्रेजेंट आई क्या, नहीं, तो कैरी इज एब्सेंट, सो दैट्स वाई कैरी फ्लैग इज 0। नेक्स्ट पैरिटी, काउंट द नंबर ऑफ वंस। इधर यहाँ पे 4 है, लेफ्ट साइड राइट साइड कंटेंट्स 4 और यहाँ पे 4 बिट लेफ्ट साइड को, तो टोटल कितने हो गए 8 बिट। तो ये क्या है इवन नंबर, तो पैरिटी इज सेट, तो लिखा मैंने 1, पैरिटी सेट है मतलब क्या लिखना है मुझे 1। नेक्स्ट वन मुझे क्या देखना है, ऑक्सिलरी फ्लैग D3 to D4 कैरी जनरेट हुई क्या, नहीं, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है ऑक्सिलरी फ्लैग में 0 बिकॉज कैरी इज नॉट सेट फ्रॉम D3 to D4, सो दैट्स वाई ऑक्सिलरी फ्लैग इज रिसेट। सो मैंने यहाँ पे 0 लिखा। नेक्स्ट वन, ये टोटल आंसर 0 आया है क्या, नहीं, FFH है, तो आंसर क्या आ गया 0, फ्लैग इज 0। सपोज यहाँ पे आंसर ही इंस्टेड ऑफ FFH 00H आया, तो मुझे क्या लिखना है वहाँ पे 1, अदरवाइज 0। अभी देखो साइन फ्लैग, ये जो बिट है वो आपको यहाँ पे लिखना है, तो मैंने क्या लिखा 1। तो ये है आपका फ्लैग फ्रॉम दिस अबव इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। सो ये है आपका 3 इंस्ट्रक्शन विच इज़ रिलेटेड टू एडिशन। तो पहले कौन सी देखी हमने, एडिशन, जो एडिशन है ऐड विथ रजिस्टर। सेकंड किसके साथ करनी है अभी, मेमोरी, तो कैसे आ जाएगी ऐड M। उसके बाद मुझे इमीडिएट डेटा दिया है, तो इंस्ट्रक्शन कौन सी आ जाएगी ADI, जो भी डेटा है वो। सो दिस 3 आर द सिंपल एडिशन विद दिस 3 ऑपरेंड, रजिस्टर, मेमोरी एंड डेटा, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कौन से देखने वाले हैं, एडिशन ही देखने वाले हैं बट विथ कैरी। उसमें क्या होगा, थर्ड बिट प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे कितने थे ऑपरेंड, 3 ही ऑपरेंड थे, जो इनबिल्ड वाला एक्यूमुलेटर था वो, और ये जो 3 ऑपरेंड थे वो वाले, बट इनके साथ और एक आने वाला है वो है कैरी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम विथ कैरी वाला देखने वाले हैं। तो अभी देखो आपको ये जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 5, वो आपको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। तो आपको ये जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। थैंक यू।